All right. Well, there's an echo here. Yes. Oh, yours also. Okay, no one. That's fine. So let's start the service for today. आज की सभा शुरू करते हैं. आइए हम प्रार्थना में आते हैं. सब खुश हैं परमेश्वर के घर में आने से. Everyone happy in the house of the Lord? सब खुश है. Amen, amen, amen. प्रभु में आनंदित है. Amen. Let's close our eyes, bow our heads as we pray. आइए प्रार्थना करते हैं. मैं इंग्लिश में करूँगा, सिस्टर राजन हिंदी में करेंगी. Lord, we just want to say thank you to you, Lord. Thank you for everything that you're doing in the life, Lord. You are a great, great God, Lord, who loves us so much, Lord, unconditionally, Lord. And we thank you, Lord, for that. Lord, today as we come before your throne of grace and mercy, Lord, we come to you as we are, Lord. Lord, we come to you as we are with the weaknesses, with a sinful nature, with things that we have done which are not right in your eyes, Lord. But we come to you as we are, Lord. But Lord, you have given us the privilege and honor to be able to do that. Yes. We don't need to hide anything from you because we cannot hide anything from you. Yes, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, for blessing us, Lord. Thank you, Lord, for loving us, Lord. Yes. Thank you, Lord, for being with us, Lord Jesus. Lord, today as we come, Lord, we celebrate India's Republic Day, Lord. Yes. 77th Republic Day, Lord. We thank you for India, Lord, our beloved country, Lord, from where we come, Lord. Not all of us, maybe, but Lord, most of us come from India, Lord. And we thank you, Lord. We ask you to bless India, Lord. Lord, today's service, Lord, we just want to submit into your hands. People who are here, bless them abundantly. The people who are on their way, Lord, Lord, you bring them here quickly and swiftly, Lord. So together we will worship you and give you praise, Lord. This time, Lord, we just submit into your hands, Lord. In your name, Lord, we say, Amen, Amen, Amen. जय मसीह सबके लिए. गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं. आपको भी. हम प्रार्थना करते हैं. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु. हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद देते प्रभु यीशु, क्योंकि धन्यवाद के योग्य तू है प्रभु यीशु. आदि और अंत तू है, अल्फा और ओमेगा भी तू है प्रभु यीशु. सारी सृष्टि का कर्ता तू है प्रभु यीशु. हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते क्योंकि तू योग्य है प्रभु. तीनों लोगों का तो स्वामी है प्रभु यीशु. हम तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है. और हम सब के लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु. इस दिन को, इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु. ये दिन तूने हमारे जीवन में लाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. वापस हम इकट्ठा होकर प्रभु तेरी स्तुति करेंगे, तेरी महिमा करेंगे, तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए हम कुछ करेंगे प्रभु. ऐसा आशीष तू हमें दे प्रभु यीशु, क्योंकि तेरे पास सब कुछ है, तेरे द्वारा सब कुछ है, तुझ में सब सीमित है प्रभु यीशु. हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु. धन्यवाद के अलावा हमारे पास कुछ नहीं प्रभु तेरे को देने के लिए, क्योंकि सब कुछ तूने दिया है, सब कुछ तूने बनाया प्रभु यीशु. इस गणतंत्र दिवस के मना रहे प्रभु, तो हमारे साथ रहना प्रभु. वचन, गवाही, स्तुति, आराधना जो भी कुछ हो प्रभु, उसमें तेरी महिमा हो प्रभु यीशु. तेरे नाम को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु. हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. जितने आए हैं, आने वाले हैं, आ रहे हैं प्रभु, उन सबको भी तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु. सारा आदर, गौरव, महिमा प्रभु यीशु में आपको देते हैं. सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुन और कबूल करते हैं. आमीन, आमीन. धन्यवाद प्रभु यीशु. We'll read the scriptures. Sister Rani, if you can read it in English, and then Sister Rajana can read it in Hindi में पढ़िएगा. Yeah. Psalms 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before his presence with joyful song. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pastures. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him
and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. भजन संहिता 100 अध्याय। हे धरती, तुम यहोवा के लिए गाओ, आनंदित रहो जब तुम यहोवा की सेवा करो। प्रसन्न गीतों के साथ यहोवा के सामने आओ। तुम जान लो कि वह यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमें रचा है और हम उसके भक्त हैं, हम उसकी भेड़ें हैं। धन्यवाद के गीत संग लिए यहोवा के नगर में आओ। गुणगान के गीत संग लिए यहोवा के मंदिर में आओ। उसका आदर करो और नाम धन्य करो। यहोवा उत्तम है, उसका प्रेम सदा सर्वदा है। हम उस पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा कर सकते हैं। आमीन। आमीन। Let's worship the Lord. So we will have 2 English songs and then followed by a Hindi song. पहले 2 इंग्लिश गाने होंगे, फिर हिंदी में गाना होगा और फिर प्रेयर होगी। प्रेयर के बाद फिर ब्लेसिंग्स सॉन्ग होंगे। Holy, 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 merciful and mighty, God is reversing, blessed truth. Holy, holy.
as we come before your throne of grace and mercy, Lord, Lord, we know that wherever you are, Lord, that place is holy, Lord. This church is standing on holy ground because your presence is here, Lord. We thank you, we thank you, we thank you, Lord. परमेश्वर जहाँ तू हाजिर होता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। आज हम जहाँ पे खड़े हैं खुदावन, इस जगह पे खुदावन, ये स्थान भी पवित्र हो चुका है क्योंकि तेरी उपस्थिति यहाँ पे है। तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। परमेश्वर जो गाने आज हम इस समय गा रहे हैं तेरी आराधना में, तेरी स्तुति में खुदावन, तो ऐसा कि खुदावन हर एक गाना जो हमारे दिल से निकले खुदावन, वो आप खुदावन आपके मुख पे एक मुस्कान लेके आए खुदावन। बस खुदावन हम यही चाहते हैं Lord, we just want that each and every song that we are singing here today, Lord, be it English or in Hindi, Lord, each song, Lord, will be pleasing to you, Lord, and bring a smile in your face, Lord, and that is a reward, Lord. That is what we want, Lord. So Lord, we just submit this time into your hands, Lord. Come angels, come join us. Join us as we join you in singing praises to our Father. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus.
blessed assurance that your love covers us. And Lord, that we can come before you spotless because of what you did for us. Lord, we love you. And all we truly need is you, Lord. Even in this world as we live, and we try to acquire all the things that we think will bring us happiness and joy, whether it's a good job or accumulate whatever we think we need. But at the end of the day, the heart needs you. The heart is at peace with you. Nothing in this world will bring us peace. And we cannot keep our promises even with each other, even if our heart intends to. Sometimes we're not able to be there for each other. But Lord, you are the one that keeps a promise. You are the one that will be there for us. And you're the one who gives us peace that passes understanding. We thank you for that because of that our heart is filled with joy. Because of that we have hope for the future. Because you have planned a home for us. And we need not worry what the world goes through. Whatever shaking happens, our home is with you. We thank you, Father God, for loving us so much. And we may all come together as one big family unit together. And oh, what awesomeness will be in heaven when we hear all tribes and tongues, all languages praise you, Lord. We thank you, and we look forward to the day when you come, Father. And we pray for all our family members and loved ones to come to know you. Lord, burn your love and light in us, that we may shine and walk, that we may draw your people to you, Lord. Holy Spirit, fill us all as we leave today. Fill us with your word. Fill us with you, Lord, to overflow on all those we need. In Jesus' mighty and matchless name we pray. Amen. We'll have a Hindi song. हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हम हिंदी गाना गाएंगे। किसने हमें शांति दिया है? गाएंगे। यीशु ने हमें जीवन दिया है। 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि नजर यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि नजर यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है। 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि नजर यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि नजर यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें आनंद दिया है। यीशु ने हमें आनंद दिया है।
यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि सदा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि सदा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि सदा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि सदा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि सदा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि सदा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें स्वर्ग जोड़ा है, यीशु ने हमें स्वर्ग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग जोड़ा है, यीशु ने हमें संग जोड़ा है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि सदा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि सदा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेस करेंगे थोड़ी सी। धन्यवाद प्रभेश, सचमुच प्रभेश, तूने हमें जीवन दिया है प्रभेश, तूने हमें संग जोड़ा है प्रभेश, तूने हमें मुक्ति दी है प्रभेश, तूने हमें शांति दी है प्रभेश, तूने हमें चंगाई दी है प्रभेश। सचमुच प्रभेश, सब कुछ तू देने वाला है प्रभेश। देने के द्वारा है प्रभेश, तूने शुरुआत की है प्रभेश। अपने आप को तक नहीं रखा प्रभु, तूने हमारे लिए प्रभेश। सचमुच हम धन्यवाद देते प्रभेश इस समय के लिए प्रभेश, हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए प्रभेश। धन्यवाद प्रभेश। पवित्र आत्मा, आप आओ आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि जो वचन आए तेरी महिमा हो प्रभेश। हम सुने प्रभेश और उस मुताबिक चले प्रभु। सच में प्रभेश हम तेरी स्तुति करते प्रभेश, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते प्रभेश। इस दिन को, इस समय को हम सबको तेरे हाथ में देते प्रभेश। हमारा आत्मा, प्राण, शरीर को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार तू हमें चला, ले चल प्रभु हमें तेरे पास, तेरे करीब और करीब हम आना चाहते हैं प्रभेश, क्योंकि तू ही सब कुछ हमारे लिए है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। Let's continue the state of prayer. Lord, we just want to say, Lord, you're God, you're awesome God, you're mighty God. When we compare yourselves to us, Lord, we realize that we are so unworthy, Lord. But when you look at us, Lord, you say, my child, you are worthy for me. Because I love you. I've given my son for you.
We thank you, Jesus. Church, at this time when we come before His throne of grace and mercy, let's pray for others. इस समय जब परमेश्वर के सामने आए हैं तो हम अपने लिए नहीं है लेकिन अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आपको मालूम है कि उनको जरूरत है परमेश्वर की, चाहे वो पैसों की कमी हो, चाहे वो रिश्तों में दरार हो, किसी भी तरह की अड़चन में हो, अब सिर्फ आँख बंद करके उनका नाम लीजिए। परमेश्वर से बड़ी परमेश्वर उनकी स्थिति में तो शामिल हो और उनको उस चीज से निकाल। Lord, we at this time we just want to lift those people to you, Lord, who are in need, Lord. It could be a finance issue, it could be relationship matter, Lord, it could be job situation, it could be anything, Lord Jesus. A wrong habit, Lord, addiction, Lord. Lord, we come against in your name, Lord. We ask you, Lord, to intervene in those situations, Lord. Yes, Abba Father, Lord, and extend your hand and lift them out of that situation, Abba Father, and place their feet on solid rock, Lord. Lord, you love us, Lord. परमेश्वर हम जानते हैं कि आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं, इतना प्यार खुदा जो कोई और किसी को नहीं कर सकता। You love us with an unconditional love, Lord, that you gave us your Son to die for us, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Lord, we intercede, Lord, for all the people who know you, Lord, and not know you, Abba Father, closely enough, Lord. We ask you, Lord, open their spiritual eyes that they may know you, Lord. Lord, we know that you are coming soon, Lord. Lord, help us to prepare ourselves and our neighbors, Lord, to welcome you, Lord. परमेश्वर हमें मालूम है कि आप आने वाले हैं खुदावंद, और इस समय खुदावंद आप सूली पे चढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। इस समय खुदावंद आप निर्णय देने आ रहे हैं। परमेश्वर हमें तैयार होने में मदद कर, ताकि सिर्फ ना ही हम तैयार हों खुदावंद, बल्कि हम उन लोगों को भी तैयार कर सकें जो हमारे लिए प्रिय हैं खुदावंद, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी क्यों ना हो खुदावंद, हम उनको मदद कर सकें खुदावंद कि वो तैयारी कर सकें। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चर्च, at this time we'll keep a moment of silence. कुछ देर के लिए हम शांति रखेंगे। And if there's anybody who needs prayers, और इस समय अगर कोई प्रार्थना चाहता है तो हम आपसे चाहेंगे आपके प्रियजनों में, आपके दोस्तों में, तो अपना हाथ उठाइए, परमेश्वर से मांगिए कि उस इंसान को जो भी उसको चाहिए खुदा वो मुहैया करें। Ask the Lord is listening, the Lord will bless the person you are lifting in your heart. He is listening to you. Let's keep a moment of silence. कुछ क्षण के लिए आप शांति रखेंगे।
each one of you. Don't worry where you are. ये परेशान मत हो कि मैं कहाँ हूँ, परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करता है। ये बस सोचो अरे मैंने तो बहुत गलत काम किए, मैंने तो ऐसा किया वैसा किया, बस सोचो परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करता है। कोई शर्त नहीं, उससे प्यार करता है, उससे प्यार करना जानता है, जो करना चाहता है वही वो करता है। उसका सिर्फ प्यार हमें देने के लिए वही हमें देता है। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Now I want you to do is meet each other and say He is for you. परमेश्वर आपके साथ है। कुछ लोगों के हाथ मिलाइए दो लोगों से, उनसे बोलिए कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपका पूरे परिवार के साथ। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. तो next we will settle down. आइए बैठते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति में। Thank you. Thank you. Yes. Amen to that. All right. So once again, a warm welcome to all of you. आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज की हमारी सभा में, जो कि हम क्या मना रहे हैं, अभी मत बोलना कि बर्थडे मना रहे हो, फिर दिवस मना रहे हैं। India's Republic Day. We are celebrating India's Republic Day today. So all of us are from India, right? सब हमें इंडिया से ही हैं। एक ब्रदर है ना। पास्टर जोसेफ को छोड़ के। So yeah, so all of us are from India. We need to bless India. Korea Independence Day is one day, same day. Yeah, August 15th. August 15th, the Independence Day. Yes. Independence Day. Independence. That's why we celebrate together. Republic Day. Okay, so very happy Republic Day. गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। और इंडिया को आपने याद करिए अपनी प्रार्थनाओं में भी, because India needs prayers, lot of prayers, and so may the Lord will be done और in India also. परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे हिंदुस्तान के लिए वो पूरी हो। आमीन। आमीन आमीन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। किसी को कुछ कहना, anybody wants to share anything? कहना है। मुझे कहना है कुछ। एक हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं होती है ठीक, वो प्रभु ही जानता है। सब कुछ ठीक है, खाली बीपी हाई हो जाता है। 170, 200, 215 ऐसे हो जाता है। हफ्ता भर तो ऐसे ही निकाला, लेकिन हांगकांग की दवाई चालू है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे हो रहे हैं। फिर परसों बहुत ज्यादा ही हो गया था, बात करने भी नहीं हो रहा था। पास्टर को फोन किया मैंने, मेरे कलीसिया के लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते ग्रुप में। कोई सुनता है नहीं सुनता है पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी को पता नहीं, मगर प्रभु सुनता है। तो परसों पास्टर को मैंने फोन किया है, ऐसे पास्टर परेशान हो गए कि रंजना की आवाज को क्या हो गया। फिर पास्टर ने प्रार्थना की और फिर थोड़ी देर के बाद ही मेरा 215 से 169 आ गया BP। और फिर कल जिंदगी में पहली बार मेरा 130 आया है BP। तो प्रभु हमारे सब दुखों को जानता है वो, और उसमें से निकालना भी वही जानता है। सिर्फ हमें उस पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो ही सब कुछ करने वाला है। तो प्रभु ने मुझे चंगा किया है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं।
जय मसीह सबको। मुझे भी एक गवाही देनी है। मेरा ये लेफ्ट हैंड बहुत दर्द हो रहा था, तो 8 दिन से बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने बोला एक्सरे निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से, और इतना दर्द होने लगा कि पेपर कुछ भी हाथ में हल्का भी उठा नहीं सकती थी, बहुत ही दर्द। फिर डॉक्टर के पास जाके आई, दूसरे दिन भी बहुत ही दर्द हो रहा था, और मैं लेफ्ट ही हूँ तो सारे काम लेफ्ट हैंड से ही होते हैं। तो फिर मुझे लगा नहीं, अभी तो उंगली भी हिला नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं। फिर मैंने पास्टर को कॉल किया कि पास्टर मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने प्रेयर किया मेरे लिए, और फिर 2-3 मिनट में मैं दूसरा काम करने लगी, पर मुझे याद भी नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है। 2-3 मिनट में फिर याद आया, अरे मेरे ये हाथ दर्द हो रहा था। फिर मैंने तुरंत पास्टर को कॉल किया, पास्टर मुझे ठीक लगा, मेरा हाथ एकदम नॉर्मल हो गया और अभी एक्सरे भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो पास्टर की प्रेयर से और परमेश्वर की दया से, प्रभु यीशु मसीह की वजह से मेरा हाथ एकदम ठीक हो गया। आमीन। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू। जय श्री। It's true, Pastor has been a conduit of channel connecting to God, and in times of trouble when my children and grandchildren have not been well, Pastor has prayed over them. It's like two agreeing in prayer together. Sometimes by yourself, you don't feel, because you're so weighed down with the problem, you don't feel and when you have somebody come together with you in agreement before God, God is pleased. And He really blesses. And I thank Pastor for always picking up that phone and standing by us. God bless you, Pastor. But actually, I came to share with you something wonderful. I've never seen this vegetable. I'll tell you, I'm amazed at God, who has created abundance for us. If only we look and we be amazed at His creation and what He's done. This one plant is so amazing. You can eat the plant, you can eat the seed, you can eat the roots, you can eat the flower. And it has so much of protein, vitamins and everything. And then it also fertilizes the soil for the next plant. So you don't have to buy fertilizer. And I was like, when I was listening to the documentary, I said, Lord, you actually have made everything for us. Man doesn't need to create fertilizer in the factories. If we just study your creation, you have given us everything for free. All the trees were for free. We are the ones who sell it for money. But God gave us everything for free. How He blesses us. We just need to really look and thank Him every day at all. So I was just amazed. The first time I've seen this plant, and I was really amazed about it. And I just thank God for everything that He gives us to nourish us, to keep us well, and also to encourage us as children to pray with each other and pray for each other, blessing. He said, we can do far more greater than Him who is God. That is like surprising, that we can pray for Ranjana, we can pray for you, for me, anytime. We don't need to be weighed down by our problems. We can just say, brother, pray for me, sister, pray for me. And God said we can do much more than even He did. What an amazing God we serve. I wish I could say this in Hindi. जो सब्जी दिखाई है मुझे पहली बार देखी मैंने। इसको आप कुछ इसके चाहे रूट हो, चाहे वो पूरी सब्जी सीड जो है, जो कुछ भी है वो आप खा सकते हो। और ये जो भी फल है, जो भी चीज़ है, ये सूर्य कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। और हाँ ओके, मेरे आफ्टर मी यू कम ओके। एंड इट कैन, वो फर्टिलाइजर के लिए भी यूज हो सकती है ये। तो मतलब परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है कि वो सब कुछ उसने हमारे लिए बना के पहले से रखा हुआ है कि हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ तैयार है हमारे लिए। प्रेज गॉड। सूर्या कम। No. Please, you have good things. Go share 2 things. Come. Please. हमारा अच्छा बच्चा। Come on, encourage him. You tell English, okay? They have good answer.
More motivation for you. More motivation for you. Motivation, encouragement to speak. For who? For you. So, like, I went on a tour with my classmates on another country, Malaysia. Then on the third day, I lost my wallet, and then that was really bad for me. And then, right when I was gonna, like, my teacher told me that it's fine, just don't do it, we'll find it soon, right? And then, when she left, I was in the hotel room, right, alone, because my roommate went to 7-Eleven with the teacher. Because I didn't have any money that time. I was broke. Okay. Then I was like, please God, I need this. I cannot lose this. Please God, please. And then I did that for around like 5 minutes straight. And then I kept looking at my bag, just saying, maybe it's in my bag, maybe it's hiding from me. I checked. I leafed through everything on my bed, and it was a mess. Yeah, it took a while to clean up. Then my teacher knocked on my door. I opened it, and then she said, "We found your wallet." I was like, "Where?" And then she told me that we found it in the restaurant. I was like, "Oh yeah," because at that time I was eating like dinner, right? Then, oh wait, I forgot. No, I did not forget. Yeah. Then I was eating dinner, and then I think when I was sitting down, when I stood up, then it fell out of my pocket, and I didn't notice. And then, it took a while for it to come back, because like, one of our tour guides had to like, it was late at night, so no one would would help me and the drivers, right? Like pickup order would not help them, like, cause it was late at night. So my tour guide kept like raising the tip like for $30, and then eventually a guy on a motorcycle said, "Okay, sure, I'll do that." Then he came back, gave my wallet, and then it was in like a food cart, or not a food cart, like the rice you put, I don't know what to call it. Container. Yeah, container. And I thought, ooh, free food. And then I opened it, oh, never mind, no food. And then, yeah, that's it. You happy? God heard your prayer? Yes, God heard your prayer, right? See, 5 minutes only. Come on, acknowledge him. Yes. What am I supposed to do? Do you have any testimony or share something? I have nothing to share. Sure? Yeah, I'm sure. Okay. I'm very sure. No problem. Okay, anybody else? क्या बोल रहा था? सूर्या क्या बोल रहा वहाँ गया था तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सॉरी, ये सर को ब्रेक करके हमने भेजा था चौकी से, तो इसका वॉलेट गुम हो गया आने से एक दिन पहले, और ये फोन किया रात को, उसका 8 बजे का टाइम था कि पेरेंट्स से एक ही टाइम बात करने देते दिन में, और इतना रोने लगा, हम लोग परेशान हो गए, और उसमें काफी सारे पैसे थे यहाँ के वहाँ के, और ये सोच रहा था मैं डांटूंगी इस बात से, फिर मैंने उसको हिम्मत दी है कि मत रोना, कोई बात नहीं, पैसे खत्म हो गए तो, मगर उसको क्योंकि मैं डरा दी तो होता, फिर वो बोला कि खत्म हो गए तो टीचर से मांग लेना, क्योंकि उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर बोलते कोई रोना बिल्कुल नहीं, डरना नहीं, फिर उसको समझा कि मैंने फोन कट कर दिया, और आधे घंटे के अंदर उसका वॉलेट मिल गया, कि फिर मैं भी यहाँ से बहुत, हम दोनों का दिल दुख कर रहा था उसका, क्योंकि उसका मन अपसेट होगा तो बुरा मानेगा सर। फिर आधा घंटे वो खुशी से टीचर के सामने हमको फोन करता है, आई फाइंड माई वॉलेट, टूर गया, लाया, वैसा सब स्टोरी बता के, फिर आधा घंटे में इतने खुश, सारे पैसे, एक पैसे किसी ने नहीं लिया था। तो जहाँ से वो लोग डिनर कर रहे थे वहां से वो टूर गए, आके उनके होटल में देख के गए, तो इसलिए हम फिर बोलते अपना मेहनत का पैसा वापस है। तो That is what happens when we submit everything to God and allow the Lord to prevail. यही होता है, जब परमेश्वर खातिर सब कुछ सौंप देते हैं
आपने जब ट्रिप था सबसे पहले प्रार्थना करवाई। Yes, sir. ये प्रार्थना के साथ हो जाएगा तो प्रभु के साथ गया, सब कुछ ठीक किया। दान दशमांश में आते हैं तो एक हिंदी गाना है जो कि हम खड़े हो गाएंगे और परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। गाना गाएंगे, खड़े होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, दानियल को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, दानियल को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया, अंधों को जिसने दिखाया, लंगड़ों को जिसने चलाया, जो लोगों को करता है चंगा, यहोवा हमारे संग संग है। जो लोगों को करता है चंगा, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, आपका परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। कौन हमारे संग है? सेनाओं का यहोवा, वो पृथ्वी का कर्ता, सारे सृष्टि का मालिक, तीनों लोगों का स्वामी हमारे संग है, तो हमें किस बात की डर है? आइए हम प्रे करेंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु। आज की सभा प्रभु आपने इकट्ठा की, आपको धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर प्रभु। आपकी खुशी में, आपके उपस्थिति में हर एक जन आया प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु इस दान अर्पण के लिए परमेश्वर प्रभु।
प्रभु इसमें आपका आशीष मांगते प्रभु यीशु, इसे आप ब्लेसिंग कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने देखा है हर एक ने किस रीति से बोया परमेश्वर प्रभु। हर एक को प्रभु आप ब्लेसिंग कीजिए, आशीषित कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। हर एक के जीवन में प्रभु आपका आशीष को मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु इस दान अर्पण को प्रभु हम आपके हाथों में देते प्रभु यीशु। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें बढ़ोतरी लाइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु आपने हमें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है परमेश्वर प्रभु। आपने हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया है प्रभु। हर एक के हाथों को प्रभु आप आशीर्वादित कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। इस ब्लेसिंग को आपके हाथों में देते प्रभु यीशु, इस अर्पण को आपके हाथों में देते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। बैठते हैं सब। Now we come to the word of God. वो वचन में है। आपको बोलना आइए। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कंफ्यूजन हो रहा है। तो वचन इनको देना था और इनके वचन को मेरे को ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में ताकि पास्टर जोसेफ समझ सके क्या बोला जा रहा है। सो इनकी तबीयत खराब हुई तो मैंने इनको बोला कि तुम आराम करो, कोई जरूरत नहीं, परेशान मत हो, और वचन जो है मैं लेके आऊंगा। अब लगता है परमेश्वर इनको बिल्कुल फुली फिट कर दिया है परमेश्वर वचन लाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए प्रभु। तुमने मुझे यहाँ पे फिर से खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तू जानता है प्रभु यीशु, सबके दिलों को तू जानता है प्रभु यीशु, सबके दिलों को प्रभु यीशु तू पहले से प्रभु यीशु बेहतर बनाता है प्रभु यीशु। तेरे पवित्र आत्मा को हम मांगते प्रभु। पवित्र आत्मा तू नए सामर्थ्य तेरे दुगने अभिषेक से मुझे तू भर दे, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा प्रभु इस वचन पे पूरी हो प्रभु यीशु। मेरे द्वारा तू बात करे प्रभु। इस वचन को समझने के लिए प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा का ज्ञान बुद्धि हम सबको दे प्रभु। हमारे हृदय को खोल प्रभु यीशु, ताकि इस वचन को हम समझ सके। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं इस वचन को और अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ। धन्यवाद। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। सब वचन सुनने के लिए तैयार हैं? Everyone ready to receive the word of God? Yes. सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक खास दिन भी आज है, मगर हम उसको बाद में बोलेंगे। तो both of you want to have a seat because That's okay, Dr. You okay? sure, anytime you just feel. And also because you're doing it for him, you will listen to him. नहीं, No, that's okay. तो सब जानते हैं हमारा देश गुलामी में था। 1947 को स्वतंत्र हुआ। Everyone knows that India was under slavery got independence only in 1947. तो 77 साल हो गए हमारे देश को आजाद होके। उसके बाद में 3 साल के बाद में हमारा देश गणतंत्र दिवस मनाया गया। 77 years, it has been 77 years since we 1950 को। okay. We got independence earlier. पहले 15 अगस्त हुआ, देश स्वतंत्र हुआ। हमारा देश आजाद होने के बाद में 79 years हो गए हमें। अभी कितने साल हो गए? 79. हाँ। हिंदी में मालूम है 79 years. It has been 79 years for India to get independence and for being a republic. हाँ। We have 77 years. तो 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस माना गया है ना, मनाया गया। In 1950 we got the constitution created for we became a republic. तो सब जानते हैं ना कि 26 जनवरी को 1950 को हमारा गणतंत्र पूरा हुआ, मगर उसके साथ साथ और भी एक काम
किया गया। Everyone knows that on 26th of January, it we were declared as a republic. But there was something else also that happened together with that. हाँ, हमारी जनगणना हुई भारत देश की पूरी उस टाइम पे, और एक कायदा उसके ऊपर लागू किया गया। A census was done with regards to the number of people, population in India, and based on that, something happened. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, Dr. Ambedkar, उन्होंने संविधान लिखा हमारे भारत देश के लिए। he wrote the constitution for India. वो 26 जनवरी को लागू किया गया। That was applied or became applicable on 26th of January. हम सब जानते हैं ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। All of us know Dr. Ambedkar, right? Yes. तो सारे नियम भारत देश के लिए तब से चालू हुए। He basically constituted everything and from that day onwards, those rules and regulations came into force. जैसे हम देखते हैं ना, रोड क्रॉस करने के लिए लाल लाइट, हरी लाइट, पीली लाइट, यानी कि हरी लाइट होती तो हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, लाल लाइट होती तो रुकते हैं, और पीली लाइट के लिए हम गाड़ी को धीमी चला के ऐसा, यानी कि ये सारे कायदे कानून तब से शुरू हुए हमारे भारत देश के लिए। जिस तरीके से हम देखते हैं ट्रैफिक लाइट, whenever we go to traffic lights, we see there are three colors there, which is red means stop, yellow means be ready, and green of course means to go. All these rules, regulations have come in from that constitution only. तब से हमारे भारत देश नियम पालने लगे, बहुत सारे नियम उन्होंने दिए भारत देश को चलाने के लिए। जैसे प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, उसकी छुट्टियां, साल में एक बार पगार बोनस वगैरह मिलना चाहिए, यानी कि बहुत सारे हैं, अभी हम उतना बता नहीं सकेंगे। We know many policies and rules for the benefit of the people, like for example for pregnant ladies, taking leaves, maternity leaves, then getting bonuses once a year, getting leaves, annual leaves in a year, all those things. वो जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखा गया, वो 26 जनवरी को लागू किया गया 1950। It was applied on 26 January 1950. हाँ, वो तभी चालू किया गया। तो संविधान हमारे देश के लिए, यानी कि जब हम गुलामी में थे, उसमें से निकलने के बाद में, when we were in slavery under the British rule, when we came out, it became applicable. हमारा देश स्वतंत्र होने के पहले हमने बहुत सारी चीजें खो दी थी ना, देश आजादी के लिए। We had lost a lot of things during our struggle for freedom. अगर हमारा देश, भारत देश आजाद होने के बाद उन्नत का देश माना जाता है ना, उन्नति करता है, यानी कि जैसे नियम आए हमारे जीवन में, कायदे से हम चलते हैं तो हमारी उन्नति भी होती है ना। And the constitution basically helped us in our development of India as a nation, where we brought into order in many matters, which basically brought about enhancement, development for the future world. और तब से हमें जो नियम दिए गए हैं, उस नियमों का हम पालन करते हैं सब लोग भारतीय। From that day onwards, Indians at least we try to follow those rules which have been embedded there. अगर हम उस नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अभी सिग्नल तोड़ा तो फाइन भरना पड़ता है ना, दंड भरना पड़ता है। Like for example, if you do not follow those rules, we will be penalized. Just like if you break the traffic light, we will be penalized. We will have to pay a fees. जो भी नियम तब संविधान ने लागू किए गए थे, वो आज तक भी और आने वाली पीढ़ी तक भी वो नियम भारत में रहने वाले हैं। ऐसा संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हम भारतीयों के लिए लिखा है। So what the rules and regulations which Dr. Ambedkar had given us as a constitution, those have been applied and will be applied in the future on all Indians. जैसे बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं, तब जैसे उसको उस स्कूल के तौर तरीके सब उसको नियम बता दिए जाते हैं, वैसे वो बच्चा चलता है तब तो वो उन्नति पाता है। Just like when we send our children to school, and for the first time, let's say we're sending the child to school, the child has to know the rules and regulations of that particular school, and if the child goes as per what the rules and regulations of the school are, then the child does well. अगर वो बच्चा स्कूल के नियमों को अगर नहीं मानेगा तो वो बच्चे को अच्छा नहीं बोलते हैं ना। And if the child doesn't follow those rules and regulations, the school itself will not call that child an obedient, a good child. अगर वो बच्चा सब स्कूल के नियमों को, कानूनों को मान के चलता है तो वो अच्छा उत्तीर्ण होता है, यानी कि अच्छे इसमें जाता है, वो अच्छा माना भी जाता है और सब सब्जेक्ट में पास होके वो
और आगे वाले स्कूल में जाता है वो। So if the child is obedient and obeys all the rules and regulations, he becomes a favorite for not only for the school, but he does well and has a brighter future. नियम और कानून हर एक के जीवन में बहुत ही जरूरी है। Rules are very important for every individual person. तब एक हर एक इंसान विकासशील होगा और उन्नत होगा। And then only if they are applied in the lives, only then that individual will become will progress and go and become bigger. तो इसी खुशी में हमारा भारत देश में हमें स्वतंत्रता मिली, इसीलिए हम ये दिन को मना रहे हैं। हमें स्वतंत्रता मिली यानी कि हम कायदे कानून जान के उस मुताबिक हम चल सकें। We got freedom to be able to obey these rules and regulations which were in our favor. इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा और भारत देश उसी कायदे से आज भी चल रहा है। And that is the reason why Dr. Ambedkar wrote the Constitution, so that we follow, we will do well. तो गणतंत्र दिवस हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। जैसे मराठी में बोलते हैं प्रजासत्ताक दिन, यानी कि प्रजा को सत्ता मिली उस दिन। What do I say in English for that? यानी कि संविधान जो लिखा गया, देखो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत सारा लिखा है भारत देश के लिए। जैसे महिलाओं को काम पे जाने का ये नहीं था, है नहीं, तो महिलाओं के लिए वो सत्ता मिली कि वो नौकरी पे जा सकती है। पढ़ाई के लिए भी सब कुछ, यानी कि बहुत सारा है उनके बारे में। अभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। There are things which Dr. Ambedkar wrote for in favor of the people, especially let's say, for example, the women, that women were not allowed to work openly, but he gave the right to the women to be able to work in any institution, any organization. कोर्ट के कायदे कानून भी सब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखे हैं जो आज तक भारत में चल रहे हैं। And the court proceedings also, everything was documented by Dr. Ambedkar. अभी गणतंत्र दिवस, प्रजा को सत्ता मिली, ये सब हम जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा भारत देश को मिली। अभी हम जानते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में हमें स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। Now we know that through Dr. Ambedkar, the Constitution, we individuals, Indians, we received freedom, and in obedience of the law, we received that freedom. हमारा संविधान लिखने वाला कौन है? Now we talk about the spiritual freedom. Who wrote that Constitution? हमारा spiritual freedom. हमारा संविधान लिखने वाला कौन है? Who wrote? हमारा संविधान लिखने वाला वो है सृष्टिकर्ता। The Lord wrote the Constitution for us, the rules and regulations for us. हजारों साल इस सृष्टि की रचना की परमेश्वर ने। Thousands of years back, the Lord created everything that exists today. और कुछ नियम दिए गए हमें भी आत्मिक जीवन जीने के लिए। And He gave us certain rules for us to follow to have a spiritual, very wonderful life. हम संविधान, अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से भी चलते हैं और हमें आत्मिक संविधान से भी हमें चलना है। So we have to set up rules to follow also the Constitution of India given by Dr. Ambedkar as well as the rules given by the Lord Himself. तो हर एक जानते हैं कि हमें संविधान कहाँ से मिलेगा। All of us know where you will get the Lord's rules. नियमों का पालन करने का रास्ता हमें कहाँ से मिलेगा? From the Bible. आमीन। तो हम देखते हैं यहोशू का पहला अध्याय। इसमें नहीं होगा। बाइबल किसी पास है? यहोशू का पहला अध्याय। Joshua. This is Joshua. हाँ, हिंदी इंग्लिश में जोशुआ। Joshua, which is the chapter?
पहला अध्याय First chapter. एक से लेके पढ़ो। Okay. Englishman. First only, Chapter 1. chapter 1, verse 1, say. बड़ा वाला बाइबल पढ़िए। अच्छा, ये तो आप पढ़ लो। हाँ, पहले से लिखा है मगर एक वचन के ऊपर हम ज्यादा से गौर करेंगे। लिखा है, हेडलाइन में लिखा है, यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। क्या कहा है? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था कहा, हे मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। इस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लाबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों या सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए यह बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तूने करेगा। इतना हो कि तू यह बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और इससे न तू दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब वहां जहां तू जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में तू रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। English man? Can somebody read? Yeah. Oh, verse 1, yeah. God's commission to Joshua. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I will give you, as I said to Moses. From the wilderness and this Lebanon as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and to the great sea toward the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide an inheritance, the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you should meditate on it day and night, so that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. And आठवां, Okay. 8 तक। आठ तक। हाँ, तो क्या कहता है? परमेश्वर ने आज्ञा दी यहोशू को मूसा के बाद इजरायली लोगों को संभालने के लिए, है ना? तो उसने आज्ञा का पालन किया, और परमेश्वर ने शपथ खाई थी कि तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जो दूध और मध की धारा बहती है, कनान देश।
The Lord had promised the people of his lives, generations before that, I will take you to the land of milk and honey. This is the promised land for you. And here he is fulfilling that promise. जैसे खुशियों भरा, आनंद से भरा, बहुत अच्छा कनान देश है जो परमेश्वर ने इजरायलियों को वहां से निकाला था कि वो देश में जाए. The Lord took them out of the Egyptian rule, slavery, and brought them into this land, which is a land of, when we say milk and honey, means happiness, joy, peace, and prosperity, everything is there. तो जैसे परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को आज्ञा दी थी, तो यहोशू ने वो आज्ञा को माना. After Moses, God gave this authority to Joshua, and Joshua agreed for it and did what the Lord told him to do. इसलिए यहोशू वो कनान देश में पहुंचा. And then they went into the land of Canaan. जैसे हम भारत के संविधान को मानते हैं तो हमारे सब काम अच्छे हो जाते हैं. Like we are required to abide by the rules and regulations of India, the Constitution, all our work gets done easily. वैसे ही हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं. Likewise, when we follow the rule and law of the Lord. जैसे यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया. Just the way like Joshua obeyed what the Lord was telling him to do. इसलिए वचन में कहा है, देखो 8वें वचन में. In the 8th verse it is written there. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में तू रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. Keep this book of the law always on your lips. English. Yeah, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. For then you will make your way prosperous and you will have good success. परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन में जब दिन रात हम रहेंगे तभी उसके नियमों का पालन हम कर सकेंगे. The Lord says that we have to meditate upon the word of God, only then we will be able to understand it, follow it. नियम इसीलिए दिए गए हैं कि हम अच्छे रीति से चल सके. The Lord has given us these rules so that we may obey them and go in the correct path. हर बात में नियम लागू होता है ना. हम काम पे जाते हैं तो घंटे का हिसाब रखते हैं, तो हमारा नियम है कि घंटे भर में हमारा पार्ट टाइम खत्म करें. Likewise, like she's given an example about the part-time work which they do. So they given a 1 hour work, they try to do their best to do all the work within that 1 hour. मगर ये हमारे शारीरिक इच्छा के लिए हो गया है. But this is because of the desire of the flesh. मगर परमेश्वर का वचन कहता है रात दिन तू इसी में लगा रहे. But the Lord says you have to meditate upon the word of God day and night. इसका मतलब है कि रात और दिन परमेश्वर हमारी सहायता के लिए तैयार है. It also means another way that the Lord is there with us day and night to help us in any time that we need His help. If we meditate on Him day and night. जैसे काम के लिए जैसे टाइम खत्म हो गया, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो खत्म हो गया, वो वहीं पे खत्म हो गया. ऑफिस भी बंद हो गया, ऑफिस टाइम खत्म हो गया. Like say for example, when they finish the work, after that work is over. They don't need to go back to that place. Like for example, offices also once the time is over, we come out of the office, we don't go back to the office at the same time. मगर परमेश्वर का ऑफिस हमारे लिए सदा सर्वदा 24 घंटा खुला रहता है. The office of the Lord is always open for us 24/7. क्योंकि साफ साफ लिखा है ना, रात और दिन तू इसमें लगा रहे. वो रात और दिन जगता रहेगा तभी तो हमें बोला है उसने. The Lord has told us that we have to meditate upon the word of God 24/7, day and night. That means if He is asking us to meditate on His word, He is also with us during that period. That is awake during that period. सबने अपने अपने जीवन में ना कुछ खोया है. All of us have lost something in our lives. मगर हमें उसी को पकड़ के नहीं रहना है. But we don't have to hang on to it always. हमें हर रोज आगे चलना है. We have to let it go and move ahead. क्योंकि प्रभु हमारे साथ चलता है. For the Lord is with us.
प्रभु हमारे साथ चलता है, सबको विश्वास है ना? The Lord is with us and He walks with us. You agree with that? और जब से हम प्रभु में आए हैं तब से प्रभु हमें सिखाता है, मार्गदर्शन करता है, हम आशीषित होते हैं। Ever since we have come under the protection of the Lord, we understand the relationship with Lord has been developed. He always guides us, helps us, protects us. इसीलिए प्रभु बोलता है कि रात दिन तुम मेरे पास आओ, यानी कि ऐसे नहीं कि रात भर भी जागो, दिन भर भी जागो। रात सोने के लिए बनाई है, आराम करने के लिए बनाए, मगर जब कभी हमें मुसीबत आए, परेशानी होए, तो ऐसे नहीं कि रात को भी मैं कैसी प्रार्थना करूं। See, it's an honor that the Lord has given us. That while He has given us time in the night to sleep and rest, but He's still saying that if you need me any time of the day or night, you can still call me. कभी भी हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। You can call Him, you can pray to Him any time of the day. अपने लिए भी और किसी के लिए जरूरत है उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। It can be for ourselves, we can pray for ourselves, we can pray for others also, whoever is in need. क्योंकि परमेश्वर का नियम यही है कि उसने हमारे लिए दे दिया। Because the law of the Lord is that He's given it to us. उसने दे दिया मतलब ऐसा है कि हमें भी दूसरों के लिए हमारा टाइम है, कुछ जरूरत है, वो हमें देना है। So likewise, as He has given it to us, His time, He wants us also to give our time to the others, whoever is in need at whatever point of time. तो हमें हर दम परमेश्वर के वचन में बने रहना है। So we have to be in the law of the Lord always. व्यवस्था विवरण में लिखा है, ये सारी आज्ञाएं तू मानेगा तो सारे पृथ्वी में तुझे मैं श्रेष्ठ करूंगा। व्यवस्था विवरण is Deuteronomy. 5वां किताब है ना व्यवस्था। Deuteronomy. हाँ। 5वां किताब है। Deuteronomy 5. नहीं वचन में नहीं लिखा है, नहीं ऐसे बोल रही हूँ। तो व्यवस्था विवरण में लिखा है कि ये सारी आज्ञाएं मैं जो तुझे देता हूँ, ये तू मानेगा तो पृथ्वी में श्रेष्ठ करूंगा मैं। It is written in the old scriptures that if you follow this law, then I will do well and good for all the world and you. तो अपने आप को हमें अपने आप को हमेशा जांचना है। He has asked us to examine ourselves. हम प्रभु के नियमों पर चलते हैं। We have to examine ourselves. Are we actually walking in the way of the Lord? परमेश्वर को हमारा कर्ता मानते हैं। Do we really say that He is my Savior, He is my Lord, He is my everything? हमें हमेशा चौकसी करनी है अपने आप से। We have to be attentive. We need to know where we stand. कि हम प्रभु के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। To know that are we really walking in the way of the Lord? कि प्रभु की व्यवस्था को हम मान रहे हैं। Are we really obeying what the Lord said, what the Lord wants us to do? प्रभु की व्यवस्था क्या कहती है? What does the law says? What does the law of the Lord says? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से निकलने न पाए। That this book, the book of rules, or the law of the Lord, should not be separated from your heart, mind, and soul. साफ साफ लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न निकल उतरने पाए। Which verse is that? व्यवस्था के पहला अध्याय 8वां वचन। Number 8. Number 8. Yeah, read it. Can you read it? Yes. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Amen. तो हमें हमेशा उसी वचन पर ध्यान देना है जो परमेश्वर के नियम में हमें रखना चाहता है। Sorry, what was the present? इस वचन को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। We always have to keep this word in our mind, that we have to follow and meditate upon the word of God. इस वचन को अगर हम ध्यान में रखेंगे, If we do that, ये वचन में बहुत बड़ा गहरा राज छुपा है परमेश्वर का। there is a big mystery which is hidden within these words. सचमुच हम इस वचन को मुजाबानी, मेरा तो मुजाबानी याद है। If we remember this by heart, हमें भी सबको मुजाबानी याद करना है, क्योंकि इस वचन में बहुत बड़ा रहस्य है परमेश्वर के वचन को समझने का। because we have to learn this by heart, because there is a big mystery and strength within this word itself. क्योंकि कहा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। Verse 8. Then you will have good success. For then you will make your way prosperous,
and then you will have good good success. success. क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। Amen. पढ़ेंगे इंग्लिश? Yeah. अभी पढ़ा। But, पढ़ा, अच्छा हाँ। और तू प्रभावशाली होगा। so, Read it again. okay, I'll read it again. अच्छा हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। So this book of the law shall not depart from your mouth, but you should meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. I can read number 9. तो नंबर 9 बात तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए बाइबल में जाना है और बाइबल के अनुसार ही हमें जीवन व्यतीत करना है, जो हमारा आत्मिक जीवन है वो। We need to read the Bible, meditate on it to be able to follow what the Lord wants us to do as given in the Bible. 7वें वचन में लिखा है, न दाएं देखना है न बाएं देखना है। So the 7th verse says you should not be looking at your left or the right. सीधे ही जाना है, क्योंकि हमें रुकाने वाला शैतान है। Because we have to look straight, we have to walk straight ahead because for us the roadblocks can be created by the devil himself. अगर हम इधर उधर देखते हैं, इसका मतलब शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है। If you're looking here and there, left or right, that means the devil is working in us. क्योंकि इधर देखेंगे तो फ्रेंड आते हैं, इधर देखेंगे तो रिश्तेदार आते हैं। Because if you look at this side, you will see the friends are coming. On the other side, when we look on the right side, we see our family members are coming up. परमेश्वर में बढ़ने के रुकावट के लिए, To stop us from progressing in the Lord. जैसे सिग्नल हरा वाला आता है तो हम देखते नहीं ना इधर उधर गाड़ी आ रही कि नहीं, सीधे हम निकल जाते हैं। Just like when it is a green light in the traffic signal, we don't need to look left and right. We have to go straight because it's a green light. इसीलिए जब संडे आता है, And that is why when Sunday comes, ग्रीन सिग्नल को देख के चलना है, ना फ्रेंड को देखना है ना रिश्तेदारों को देखना है। likewise when Sunday comes, you don't have to look at your right or left. You don't have to look at the green signal. The signal is green, and you have to come straight to church. फ्रेंड बोलेंगे पार्टी में चलो, Friend will say, "Come, let's go and party." रिश्तेदार बोलेंगे हमारे लिए शॉपिंग करो इंडिया में बैठ के, Relatives will say, "Come, let's do some shopping." क्योंकि संडे ही टाइम मिलता है हमें फ्रेंड से मिलने का और रिश्तेदारों के लिए शॉपिंग करने का। Because Sunday is the only day when you have time for your friends and do shopping and also play football. तो हमें दाएं बाएं नहीं देखना है, साफ साफ बाइबल में लिखा है। So you don't have to look left or right. Bible it is written in देखो the 7वें Bible. वचन में लिखा है, उसी के किताब में 7वें वचन में लिखा है। In the 7th verse it is written there. हाँ पढ़ो फिर से चाहिए तो। 7th verse. 7th verse. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the Left left. hand. हाँ साफ साफ लिखा है, It's written there. साफ साफ लिखा है उसमें, क्योंकि हम दाएं बाएं देखेंगे तो फ्रेंड में बिजी हो जाएंगे, रिश्तेदारों में बिजी हो जाएंगे, तो हमारा मन भटकने न पाए। इसीलिए परमेश्वर ने आज इस वचन को मेरे लिए दिया है और हम सबके लिए। That is why the word says we have to look straight, no left, no right, because those are deviations for us. And this word has been given to Sister Ranjana to bring to all of us, including her, so that we may know which way to go. अभी हम 9वें वचन को पढ़ेंगे। Now we read the 9th verse. क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमेन। In English. दाएं भी जाते हैं तभी भी परमेश्वर हमारे साथ होता है, फ्रेंड में जाते हैं तब भी, और शॉपिंग के लिए जाते हैं तब भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। Irrespective of whether we go left or right, the Lord is with us. First read in English. हाँ Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen. आमेन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? रिश्तेदारों को भी बाद में, क्योंकि हम मरेंगे तो 2 दिन रोएंगे वो, बाद में कुछ नहीं, अपने पार्टी एंजॉय करेंगे वो लोग। So, with regards to like say for relatives, don't worry about it, because even if something happens when we die, they will cry for only for 2 days and then they will go back into their own ways.
संडे का सारा दिन हमारे हाथ में होता है, The whole of Sunday is with us. मगर 2 घंटे हम परमेश्वर को नहीं दे सकते। But sadly, we cannot give 2 hours to the Lord. हम क्या नियमों का पालन करते हैं? What kind of rules are we following? खाली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है उसी को पालन करते हैं। We only follow Dr. Ambedkar's rules. रेड लाइट क्योंकि हर जाना भरना पड़ेगा ना। Because when we cross the red light, we have to pay fine. रेड लाइट आती तभी इधर उधर नहीं देखते, रेड लाइट क्यों देखते हैं? When the red light is there, we do not look here and there. We look at the red light only. तो हमारा परमेश्वर क्या कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांध कर दृढ़ हो जा। Number 9 again. हाँ, Have I not commanded you, be strong and of good courage? That's it. Do हाँ। तो हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है, डरने की जरूरत नहीं। वो फ्रेंड हमें बाद में भी मिल सकते हैं, जब खत्म होने के बाद। We don't need to worry because we can meet our friends or relatives after church also. हम बोल सकते हैं भाई 2 घंटे का टाइम है, प्रभु को दे के आके हम तुम्हें मिलते We हैं, can always say that no, this time is dedicated to God, and after that I will come and meet you. क्योंकि हम प्रभु में है, वो जिम्मेदारी हमें दी है, वो नियम हमें दिए हैं, तो हमें परमेश्वर के आज्ञा का पालन हमें करना है। So these rules have been given to us, not just for like that. These were given to us so that we need to follow them. क्योंकि उसके नियम का अनुसरण करने के लिए उसने हमें चुना है। Because He has chosen each one of us to follow those rules. क्योंकि हम चुने हुए हैं, Because we are the chosen people. जगत से अलग किए हुए हैं, We have been set apart from the world. हमें स्वर्गीय वारिस से उसने चुना हुआ है, हमें जगत से अलग किया है, और राष्ट्रीय याजक और याजकगण के नाम से वो हम जाने जाते हैं यीशु मसीह में। Yes, so we are called the children of God in the kingdom of God. So we will have different roles to play there. तो हमें डरना नहीं है, फ्रेंड हमारे से कभी जाएगा नहीं, क्योंकि सच्चा फ्रेंड है वो कभी नहीं छोड़ेगा। So we don't need to worry about friends or relatives. If is a true friend, that friend will never go and leave you. सही में ना, अच्छा फ्रेंड होगा तो वो थोड़ी बोलेगा कि भाई 2 घंटे चर्च के लिए तू मत जाना, मेरे साथ आना, ऐसा नहीं बोलेगा If it's ना। a true friend, he will not say no, don't go to church. Come be with me. अगर He will let you go. हम प्रभु के साथ है और वो फ्रेंड भी हमारा अच्छा है, तो हमारे विरोध में कभी नहीं जाएगा वो। He will never go against your wishes to come to the church, and he will let you go. हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो हम सब अपना देश छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। मंडे टू सैटरडे हम काम ही करते हैं, संडे का एक ही दिन मिलता है जो रिश्तेदार है, फ्रेंड है। We have all come here from India to work here, and now we work till Saturday. Sunday is only day when we are able to meet people. सब लोग सोचते होंगे कि ये सिर्फ संडे के बारे में क्यों बोलती है, क्यों संडे प्रभु हमारा इंतजार करते हैं यहाँ पे। People might be thinking, why does she always say I must sleep on Sunday? Because Sunday the Lord waits for us. अगर कोई हांगकांग में हीरो आने वाला होता है तो कैसी भीड़ लगती है कि वो आने वाला है, आज देखने जाना है, देखने जाना है, देखने जाना है। It's like a Bollywood hero comes to Hong Kong. People are excited to go and meet that see that Hollywood star, Bollywood star. हमें हर संडे को प्रभु यीशु जो जीवित परमेश्वर है, हमारे लिए उसने अपना क्रूस पे अपना बलिदान दिया, अपना खून बहाया, हमारा उद्धार किया, हमारा स्वर्गीय वारिस बनाया, वो हमारा यहाँ पे इंतजार कर रहा है, हमें 2 घंटे देने के लिए आना है। The Lord Jesus Christ, who sacrificed himself for us, he was a sacrificial lamb. He took upon our sin upon his shoulders and gave us salvation. We need to be mindful that we have to come to church 2 hours to spend with him on a Sunday. क्योंकि परमेश्वर का नियम यही कहता है, Because the law of the Lord says that. मेरे नियमों का पालन करो तो मैं तुम्हें प्रभावशाली करूंगा, यानी कि आत्मिक बढ़ोतरी देगा, आत्मिक शक्ति देगा, आत्मिक ताकत देगा, और यहाँ खड़ा रहने की बुद्धि भी वही देगा। The Lord will give you all the strength that you need to, if you abide by the law, the Lord will give you all the things that you need, success, strength, confidence to stand and praise the Lord. इसलिए कहा है, वो जो पढ़ा ना अभी 9वां वचन, उसमें बाद में हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। हियाव का मतलब है मजबूत हो जा। So, be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed.
For the Lord your God is with you wherever you go. क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। Wherever you will go, the Lord will be with you. So do not be dismayed. तो हमें परमेश्वर के नियमों का पालन करना है। तो इस गणतंत्र दिवस पे हमने हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए नियम जो सीखे हैं हमें उसको धीरे धीरे फॉलो करना है। Today we have learned, we discussed about the Republic Day of India, the rules and the Constitution of India, and then we looked at the spiritual side of it in terms of following the law of the Lord to be able to do well spiritually also. परमेश्वर के नियम बहुत सीधे हैं। The law of the Lord was very simple. कुछ लेके जाना नहीं है, कुछ देना नहीं है, You don't have to कुछ do नहीं है, anything, you don't have to take anything, क्योंकि वो देने वाला है। because He is the one who gives. उसने अपने आप को दे दिया है He gave Himself for और us. आज तक वो हमें जो मांगते हैं हम वो मुफ्त में देता है। Until today, whatever we ask for to the Lord, He gives it to us. इसलिए परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का कानून हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। And that is why for our progress, success, the law of the Lord is so important. यहोशू ऐसे ही नहीं गया कनान देश में जो दूध और मधु की धाराएं बहती है, फला फूला देश आनंद से भरा परमेश्वर ने जो बनाया था, इजरायलियों को जो वादा किया था, उस देश में यहोशू ऐसे ही नहीं गया। Joshua didn't go just like that into the promised land, where there was plentiful of everything. मगर उसने परमेश्वर के नियमों का पालन किया और वो उस देश में गया। And just because he followed the law of the Lord, did what the Lord was telling him, that is why he was able to go into that land. मगर हमें कनान देश में नहीं जाना है, But we don't need to go there. हमें जाना है स्वर्ग। We have to go to the heaven, kingdom of God. स्वर्ग में जाने के लिए हमें हमारी आत्मिक तैयारी करनी है, So to be able to do that, we have to prepare ourselves spiritually. क्योंकि परमेश्वर आत्मा में है और स्वर्ग में है। Because the Lord is the Spirit and He is the kingdom of heaven. यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करें। John 4, 4:24 John 4:24. Somebody read please, and then we will close. 4:24. John. मुझे बनी याद है मुझे 4:24 हिंदी में जिसके पास है वही है, परमेश्वर आत्मा में है और उसकी उपासना आत्मा English से। is Let's read. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. And truth. आमेन। परमेश्वर आत्मा में है, हमें भी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें हफ्ते में एक दिन बुलाते हैं, मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, मगर हफ्ते में एक दिन और वो भी 2 घंटा प्रभु हमारी राह देखता है, प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है, इसलिए हमें आना है यहाँ। The Lord wants to bless us. That is why we insist and ask you, encourage you to come to the church 2 hours in a week on Sunday. Make time and keep that time aside for God. हमें सब जाना है सबको न? How do I want to go to heaven? कोई नहीं जाना चाहता है। Anybody wants to go to hell? Yes? हमें इतने धीरे धीरे जाएंगे आप। तो हमें आत्मिक नियमों का पालन करना है, इसलिए हमें प्रभु के पास आना है। जैसे यहोशू ने आज्ञा का पालन किया वैसे हमें भी करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा हमें दिए है, ये नियम हमें दिए हैं, तो हमें इस नियमों का पालन करते हुए प्रभु के पास जाना है और स्वर्गीय वारिस बनने के लिए तैयार होना है। आमीन। And so we have to follow the Lord's law. If we all of us want to be in the kingdom of heaven, we have to follow the law of the Lord, abide by the law of the Lord, to receive the blessings of the Lord and be successful the time that we are here on this earth. Praise God. Praise God. Now we come to the Holy Communion. People who know what we are doing,
Please partake in this. Those who do not know, आप अभी उससे रहने दीजिए and you can partake it at some other time. Jia, she'll come. Let's all stand. Close your eyes for a moment as you lift this element in your hand. Will somebody help Pastor Joseph? Open that. Okay, he's able to successful. This bread which you are holding in your hand, ये जो bread आप अपने हाथ पकड़ रहे हैं, this is ये हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है. This is the body of Christ which was broken for us. He allowed his body to be broken so that our body will be made whole. He's the King of Kings, Lord of Lords. He could have just said no to it and asked for help from the angels who were waiting. जो एंजल्स हमारे इंतजार कर रही थी, परमेश्वर यीशु मसीह उनके मदद मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें देखा, उन्होंने देखा कि हमारा शरीर टूटा हुआ है और चाहता था कि हमारा शरीर एक हो, कभी ना टूटे, उनके साथ मिल जाए, परमेश्वर के शरीर साथ मिल जाए, तो उन्होंने अपने शरीर को टूट दिया. As we eat of this bread, just remember his body was broken for us, and ask him to make your body whole. Eat, let's eat of the bread together. जब हम खाते हैं इसको ब्रेड को, परमेश्वर से मांगो कि वो आपके शरीर में कोई भी चीज जो टूटी हुई है वो पूरी ठीक कर दे, आपका टूटापन हटा दे आपसे और अपने शरीर से वो आपके शरीर को जोड़ दे. Let's eat of the bread. उसी तरह उस रात यीशु मसीह ने कप लिया, परमेश्वर का धन्यवाद दिया और अपने चेलों को बोला, ये इस कप में से तुम सब लोग पियो, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए बहाया जाएगा. On that day he lifted up the cup and giving thanks to the Father, he gave it to the disciples and said, drink from it, all of you. This is my blood which is being shed for you. परमेश्वर ने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि उसके लहू से हमारे जो पाप हैं वो धुल सके, ताकि हम जब परमेश्वर पिता के सामने आए तो वह हमारे पाप को ना देख सके, धुल चुके होंगे, स्वच्छ हो चुके होंगे, हम पाक हो चुके होंगे. He did it because he wanted us to be holy, to be sinless when we come to the Father. So when you drink from this cup, ask the Lord, I have sinned, cleanse me. जब आप ये पिएंगे तो आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर जब मैं पीता हूँ तो खुदावन मेरे अंदर से जो भी पाप है उसको दूर कर दे ताकि मैं भी पाक हो सकूँ. Let's drink from the cup together.
say the Lord's Prayer together, first in English. May I ask all to stand, please? We'll say the Lord's Prayer. In English. Our Father, Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. You say in Hindi also. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। We'll say 2 Corinthians 3:14. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। Lord, we just want to say thank you to you, Lord, for the people who are here, Lord. The chosen people are here, Lord. We bless them, Lord, abundantly, Lord. Yes. Lord, as we are about to close our service, Lord, we're not going to close our relationship with you, Lord, or be away with you, Lord. Lord, we ask you, Lord, be with us, Lord, in all our ways and all our days and all our moments, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. परमेश्वर इस तरह इस समय जब हम इस सभा को समाप्त करने वाले परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं क्या भले ही सभा समाप्त हो गया लेकिन हमारा आपका रिलेशनशिप जो है वो हमेशा बना रहे और हम आपके करीब हर दिन आते हर समय आते रहे परमेश्वर हम यही चाहते हैं परमेश्वर लॉर्ड बी विद अस कीप अस सेफ एंड प्रोटेक्टेड हमें हमेशा खुद सुरक्षित रखना अपने समीप रखना तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए ने सुना है कि the word that we have heard today, Lord, help us to abide by it. Yes. And Lord, let us help us, Lord, ताकि हम जो वचन सुना उसको मुताबिक चल सके और तेरे वचन पे हमें हमेशा खुदावन हम उस पर सोच सके समझ सके दिन रात खुदावन हमारी ज़बान पे हो खुदावन हमारे हृदय में हो हमारे मन में हो Lord, let your word be on our lips, Lord, on our mind and on our soul, Lord Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We submit this time, Lord, into your hands, Lord. The fellowship, the celebration of Republic Day, and everything, Lord, we just submit into your hands and ask your blessings, Lord. In your name, Lord, we say. Amen. 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 थोड़ी देर में बैठेंगे